Okay, thank you. Honorable Chairman of the Society, organizers, conveners, participants, and dear friends. At the very outset, I would like to express my thanks to the organizers for providing the opportunity to speak in this national webinar on physical activity, immunity, and COVID-19. I am feeling great pleasure as I have got this opportunity. Again, I express my sincere thanks, and my services will be available in future. Since I am directed to speak on physical activity, immunity, and COVID-19, so I will speak about the relationship between all these three terms, that is physical activity, immunity, and COVID-19. I am also directed by the organizers to speak in both the languages, English as well as Hindi, so I will English as well as Hindi, दोनों भाषाओं का प्रयोग करूंगा, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, जैसा मुझे निर्देशित किया गया है. I divided my presentation in different parts. Outline of my presentation are: I will speak on physical activity in detail, then we will discuss about immune system, रोग प्रतिरोध क्षमता के बारे में भी बात करेंगे. Then I will discuss about physical activity and immune system, means I will discuss about the relationship between the physical activity and immune system, शारीरिक गतिविधि और रोग प्रतिरोध क्षमता के बीच जो आपसी है उसके बारे में बात करेंगे. And then I will discuss about physical activity and COVID-19. We all know that we are facing epidemic, एक विश्वव्यापी भयंकर बीमारी का सामना हम कर रहे हैं. इसके और स्टिल द क्लिनिकल रिसर्चेज आर गोइंग ऑन, क्लिनिकल रिसर्चेज चल रही हैं. अभी तक कोई ठोस का नहीं निकल पाया है. और वी ऑल नो दैट, हम जानते हैं कि वी nowadays we are living in a protective layer. हम आज के दिन एक प्रोटेक्टिव लेयर में निवास कर रहे हैं. हम एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर में, एक बबल में रह रहे हैं. एक बाहरी परत एक हम तलाश रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बचाने की. बट आई विल डिस्कस अबाउट द इनर प्रोटेक्शन ऑल्सो, दैट इज नोन एज आवर इम्यून सिस्टम, हमारी रोग क्षमता जो हमारा इनर प्रोटेक्शन है. आई विल डिस्कस इन डिटेल हाउ टू इंप्रूव दिस इनर प्रोटेक्शन. Sorry sir, sorry to disturb you sir, but your PPT is not visible. Sorry to disturb sir, but your PPT is not visible. Can you start screen sharing again? But someone, I don't know how my PPT is blocked. Yes, you can share again. Yes. Someone requested me on the screen. I opted for yes, so this was hanged. Again, now it's visible. No sir, last time you clicked on it, it was visible. Again, send again. Please send request again. Can you sir? Let me send again. राजीव सर अपने स्क्रीन शेयर करने का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और जितने भी ऑप्शन आते हैं सबको चेक मार्क कीजिए और शेयर पर क्लिक कीजिए. एक बार सर आप ऐप में आइए, स्टॉप शेयरिंग कीजिए, फिर से शेयरिंग स्टार्ट कीजिए सर. जी सर, फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल ऐप में आइए फिर से. Is it visible? Presentation, and I am opening again, and I have clicked on that. Yes sir, now it's going through. Yes, it's going through. This is the visible? Yes sir. Okay, Thank you. We were there. I have discussed about the different points that I am going to discuss. Due to technical problems, we have wasted time.
आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल एक्टिविटी। मैं उस भाषा में बात करूंगा जो सब फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंसेस की भाषा में बात न करके उस भाषा में बात करता हूं जिसमें एक आम व्यक्ति के लिए समझना आसान हो। वी कैन डिवाइड ऑल द एक्सरसाइजेज इनटू 2 कैटेगरीज। जो भी हम गतिविधियां, शारीरिक व्यायाम करते हैं, हम उनको 2 भागों में बांट सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेज एंड अनएरोबिक एक्सरसाइजेज। एरोबिक एक्सरसाइजेज मींस एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विद लो इंटेंसिटी, जिसमें वॉल्यूम अधिक होगा, इंटेंसिटी कम होगी। ऑन द अदर हैंड अनएरोबिक एक्सरसाइजेज में इंटेंसिटी अधिक होगी, वॉल्यूम कम होगा। तो इसको समझने के लिए 2 शब्द हमारे सामने हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम। कि वॉल्यूम क्या है और इंटेंसिटी क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग लोड, प्रशिक्षण भार। क्योंकि हम कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी गतिविधि करते हैं, उस गतिविधि में वी डू ए ट्रेनिंग सेशन दैट कंसिस्ट ऑफ ए ट्रेनिंग लोड। हम कोई भी एक ट्रेनिंग सेशन करते हैं, एक प्रशिक्षण का सत्र करते हैं। Actually, if I can start it now because that my free conference call app is on there. So if I go to setting now, that also would be visible. Now my voice is clear. Yes, sir. But rest, mute their mics. Okay. Audible, sir. Can I continue? हाँ कंटिन्यू कीजिए। हाँ Maybe by कंटिन्यू tomorrow. कीजिए। बीच में डिस्टरबेंस आ रही है, बीच में आवाज आती है, तो आई स्टॉप। अब बात करेंगे ट्रेनिंग लोड की, प्रशिक्षण भार की। ट्रेनिंग लोड क्या है? यदि ट्रेनिंग लोड को परिभाषित करना, इट इज ए बॉडीली और नर्व or an organism caused by well directed motor stimuli. It means load is a demand of body as well as mind and it is given by different, जिसमें हम विभिन्न मूवमेंट्स के माध्यम से स्टिमुलेट करते हैं। दैट मे बी रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, एक्सरसाइजिंग एक्सेट्रा। एंड इफ वी डिवाइड ट्रेनिंग लोड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, वी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। यदि पूरे प्रशिक्षण भार को, जो कि एक ट्रेनिंग सेशन में हम करते हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं, इनर लोड और आउटर लोड। इनर लोड मींस जो आंतरिक भार है, दैट आर द इंटरनल चेंजेस अकर्स इन बॉडी ड्यू टू आउटर लोड। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पल्स रेट का बढ़ जाना, रेस्पिरेट का बढ़ जाना, वाइटल कैपेसिटी का बढ़ जाना, ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी का बढ़ जाना वगैरह वगैरह, पॉजिटिव ब्रेथ होल्डिंग। आगे बात करते हैं आउटर लोड। आउटर लोड मींस वी डू फ्रॉम आउटसाइड by the help of different exercises that I have explained earlier, and we divide outer load into volume and intensity. हम outer load को 2 भागों में करते हैं, इंटेंसिटी में और वॉल्यूम में। इंटेंसिटी और वॉल्यूम का अर्थ है, इंटेंसिटी मींस स्पीड ऑफ वर्क डन, जिस गति से करते हैं उसको कहते हैं इंटेंसिटी। वॉल्यूम इज अ टोटल वर्क डन, जो कुल किया गया कार्य किसी भी ट्रेनिंग सेशन में, किसी भी प्रशिक्षण सत्र में, वो कहलाता है वॉल्यूम। इसको जानने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि पिछली स्लाइड में हम चर्चा कर चुके हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस, 2 प्रकार के व्यायाम हैं, वो है एरोबिक, एनारोबिक। बात हो चुकी है, एरोबिक में वॉल्यूम अधिक होगा, इंटेंसिटी कम। अनारोबिक में इंटेंसिटी अधिक होगी, वॉल्यूम कम होगा। तो इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम बोथ आर डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस। Intensity is divided into intensity and density. Intensity means speed. Density means the rest period in between 2 sets of intensities. जो भी हम वर्कआउट का अंतराल जो हमारा होता है, सेट ऑफ इंटेंसिटी है, उसके में हम कुछ देर आराम भी करना पड़ता है, आराम करते हैं, निरंतर कंटिन्यू नहीं करते हैं, दैट इज नोन एज डेंसिटी। वॉल्यूम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ड्यूरेशन, यहाँ जो ड्यूरेशन शब्द है उसका डिक्शनरी मीनिंग से अर्थ न निकालें। ड्यूरेशन का अर्थ डिस्टेंस भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ रिपीटिशंस। इट मींस वी रिपीट द सेम टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस सेवरल टाइम्स। हम एक ही प्रकार के व्यायाम को कई बार रिपीट करते हैं, अगेन आई रिपीट। इंटेंसिटी मींस स्पीड, की किस गति से कर रहे हैं। डेंसिटी मींस रेस्ट पीरियड इन बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ इंटेंसिटी। ड्यूरेशन मींस डिस्टेंस और टाइम। फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ रिपीटिशंस, की किसी गतिविधि को कितने बार हम रिपीट करते हैं।
सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट इंटेंसिटी, डेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब हम इम्यून सिस्टम की बात करेंगे, जब हम when we will discuss about the relationship between immune system and physical exercises, वहां चर्चा करेंगे कि कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, कितना वॉल्यूम होना चाहिए, इसलिए इसको जानना जरूरी था। इन चारों टर्म्स को हम जान गए हैं। अगेन आई रिपीट, देयर आर टू मेन टर्म्स, इंटेंसिटी स्पीड ऑफ द वर्क डन, वॉल्यूम इज टोटल वर्क डन। आगे चलते। लेकिन जो भी हम गतिविधि करते हैं उसके विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, कोई एक प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें इमीडिएट इफेक्ट भी देखने को मिलती है। देयर आर सम इमीडिएट आकस्मिक प्रभाव जो कि एक्टिविटी के दौरान भी हो सकते हैं, ड्यूरिंग परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, और एक्टिविटी के तुरंत बाद भी होते हैं। दूसरे प्रकार के हमारे ऊपर प्रभाव पड़ते हैं डिलेड इफेक्ट। इट मींस इफ वी डू एक्सरसाइज टुडे वी मे सी द बेनिफिट्स 2, 3, 4, 5 days later also, and next one is the last one is the cumulative effects। हम कोई एक प्रकार का ट्रेनिंग सेशन नहीं करते हैं, एक प्रकार का व्यायाम नहीं करते हैं, वी डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, और हर प्रकार की एक्टिविटी का हर अलग अलग तरह का प्रभाव होता है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज द टोटल इफेक्ट ऑफ द ऑल द सेशंस, एंड दीज सेशंस आर ऑफ डिफरेंट नेचर। जो विभिन्न सेशंस, विभिन्न सत्र, विभिन्न प्रकार, विभिन्न प्रकृति के हैं, उन सब का जो टोटल एक इम्पैक्ट है, दैट इज नोन एज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट। आगे चलते हैं। अब इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आई विल कम टू माई मेन पार्ट, दैट इज इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोध क्षमता। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्वव्यापी कोविड-19 के प्रकोप से हम सब ग्रसित हैं, पूरा संसार ग्रसित है। बस एक ही अभी तक के फाइंडिंग्स में, अभी तक की चर्चा में यही परिणाम निकल कर आए हैं कि अभी तक तो उपचार केवल यही है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को, हम अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता को स्ट्रॉन्ग बनाएं, और उसके लिए जानना होगा, वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच इम्यून सिस्टम डिपेंड्स। यहां चर्चा का विषय है, हमें उन सब कारकों की चर्चा करनी होगी जिन कारकों पर हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता निर्भर करती है। एंड दीज फैक्टर्स आर एज, हम सब जानते हैं कि उम्र का प्रभाव हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता पर पड़ता है। जेंडर, बोथ मेल एंड फीमेल डू नॉट पॉजेस द सेम टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम। ईटिंग हैबिट्स, हमारी खाने की आदतें, क्या खाते हैं उस पर भी निर्भर करता है हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता। मेडिकल स्टेटस, हमारा मेडिकल स्टेटस क्या है, हमारा स्वास्थ्य का स्तर क्या है, उस पर निर्भर करता है। एंड ट्रेनिंग, एंड द लास्ट वन इज फिटनेस लेवल। अब इनको हम यदि गौर से समझना चाहें तो एज इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, एज पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। जेंडर इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो है वो है। ईटिंग हैबिट्स वी कैन कंट्रोल, हम नियंत्रित कर सकते हैं, तो वी शुड गिव स्ट्रेस ऑन ईटिंग हैबिट्स। मेडिकल स्टेटस, टू ए ग्रेट एक्सटेंड बाय चेंजिंग आवर लाइफस्टाइल, हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके काफी हद तक अपने मेडिकल स्टेटस को ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ट्रेनिंग 100% हम अपने अनुरूप डाल सकते हैं, कर सकते हैं। फिटनेस लेवल, वी कैन इंप्रूव आवर फिटनेस लेवल, सो वी शुड टेक केयर, और वी शुड गिव द स्ट्रेस ऑन द फैक्टर्स which are not beyond our control, जो हमारे नियंत्रण में है। उन साधनों को अपनाकर हमें अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस प्रोसेस। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को ठीक से समझने के लिए तो दो भागों में यहां विभाजित करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज। हमारी रोग प्रतिरोध क्षमताएं दो प्रकार की हैं, यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता किसी भी व्यक्ति विशेष के पास, किसी भी व्यक्ति विशेष के शरीर में दो तरह से विद्यमान होती है। फर्स्ट वन इज इनेट इम्यूनिटी एंड द सेकंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट, अभी हम चर्चा करते हैं मिलकर कि इनेट इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। इफ यू हैव एनी kind of question in between, you can unmute your mic and you can ask in between also. I hope I am audible. Now I will discuss in detail about innate immunity as well as acquired immunity. ये एक कंपैरेटिव चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड
there is details of innate immunity is present. On your right side, the details of adaptive immunity is present. Before discussing in detail, in brief, we will discuss in this chart. In innate immunity, there are three types of barriers: physical barriers, chemical barriers, and white blood cells. On the other hand, in adaptive immunity में दो प्रकार की हैं, हार्मोनल है, स्पेलिंग इज रॉन्ग, हार्मोनल है, और दूसरी है सेल मीडिएटेड। इन फिजिकल बैरियर्स हम सब जानते हैं कि जो कि फिजिकल बैरियर में एपिथेलियल सेल बैरियर्स है और म्यूकस है, जो दोनों हमारा बचाव करते हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म से, जो कि आक्रमणकारी जीवाणु होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। केमिकल बैरियर्स में है कंप्लीमेंट लाइसोसोम है, पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड है, और एक्यूट फेज प्रोटीन्स हैं, ये हमारे केमिकल बैरियर्स हैं। ये भी हमारी इन्वेडिंग एजेंट से रक्षा करते हैं, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता का एक भाग है। नेक्स्ट वन इज व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, मोनोसाइट्स और माइक्रोफेजेस कहें या ग्रेनुलोसाइट्स कहें, और काफी नेचुरल किलर्स होते हैं। तो ये तीनों ही भाग, चाहे फिजिकल बैरियर कहें, चाहे केमिकल बैरियर कहें, चाहे व्हाइट WBC कहें, ये सब इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है, ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है, जो हम ग्रहण करते हैं बचपन जन्म से, जो हमारे साथ नहीं रहती है, जन्म के बाद हम अडॉप्ट करते हैं, उनमें दो है, एक बॉडी मेमोरी है और दूसरा है लिम्फोसाइट्स, जिसमें कि दो प्रकार के सेल्स हैं, T सेल्स हैं और B सेल्स हैं। नाउ इन ब्रीफ, संक्षिप्त में ही, क्योंकि मेरे लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण काफी समय नष्ट हो चुका था, सो आई विल डिस्कस इन वेरी ब्रीफ विद स्पीड। बात करते हैं पहली प्रकार की इम्यूनिटी की, इनेट इम्यूनिटी की, इनेट इम्यून सिस्टम की। यह हमारी पहली रेखा है डिफेंस की, रक्षा की। दिस इज नोन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यदि कोई इन्वेडिंग एजेंट, कोई भी आक्रमणकारी जीवाणु शरीर पर हमला करता है, आक्रमण करता है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये हमारी रक्षा करती है। इनेट इम्यूनिटी कैसे? दिस कंसिस्ट ऑफ एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। इन दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैरियर्स। इसमें दो प्रकार के बैरियर हैं, दो प्रकार के अवरोध हैं, दो प्रकार की रुकावटें हैं जो रोकती हैं, एक तो एनाटॉमिकल और एक फिजियोलॉजिकल, दोनों ही है। उदाहरण के तौर पर आपके सामने कुछ लिस्ट किया गया है कि एक सूची प्रस्तुत की गई है। स्किन है, हमारी त्वचा है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारा बॉडी टेम्परेचर है दैट फ्लक्चुएट्स, फॉर एग्जांपल फीवर, और कुछ स्पेसिफाइड सेल्स हैं जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता से हमारी रक्षा करते हैं, जिसमें कि पहले बात कर चुके हैं एक सेल की नेचुरल किलर सेल्स भी इसी श्रेणी में है, स्पेशलाइज्ड सेल्स में। आगे चलते हैं। अब वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी का सबसे प्रमुख हिस्सा है व्हाइट ब्लड सेल्स। दीज आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। इसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। एक हेल्दी इंडिविजुअल में 4500 से लेकर 11000 सेल्स पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड पाए जाते हैं हमारे शरीर में, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। लेकिन ये कार्य कैसे करते हैं? उससे पहले दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो, जो कि हमारी बोन मैरो द्वारा इसका उत्पादन होता है। दिस हेल्प अस टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। जो कि इन्फेक्शियस डिजीज है उनके अगेंस्ट काम करते हैं। फॉरेन मटेरियल्स, बाहर से जो किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है उससे हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, जो भी जीवाणु हम पर आक्रमण करते हैं। वी नो दैट सिंस व्हाइट ब्लड सेल इज फाउंड इन ब्लड, क्योंकि रक्त में पाया जाता है, दिस सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी एंड सीक आउट देयर टारगेट्स। यह पूरे रक्त में इसका संचार होता है और ये अपने टारगेट को, अपने दुश्मन को पहचानने का प्रयास करते हैं, टारगेट पर पहुंचते हैं। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो दो प्रकार के ल्यूकोसाइट्स हैं, दोनों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि दोनों के कार्य अलग अलग हैं। कौन है? द फर्स्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट इज फैगोसाइट्स, जो कि इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि आक्रमणकारी ऑर्गेनिज्म है, जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको नष्ट करते हैं, च्यू अप करते हैं। दूसरी तरफ लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स का एक ही कार्य है, ये याद रखते हैं प्रीवियस इन्वेंडर्स कि हमारे शरीर पर भूतकाल में किस किस इन्वेडिंग एजेंट ने आक्रमण किया था, वो
उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स की। अभी तक हमने केवल बात की थी व्हाइट ब्लड सेल्स की एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें, ए टाइप ऑफ फैगोसाइट की तरह ही है, मतलब कि नष्ट करता है इन्वेडिंग एजेंट को। दूसरी बात, विजिबल इन साइटोप्लाज्म, यह पाया जाता है कोशिका में, सेल में साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में पाया जाता है फैगोसाइट। दिस कंसिस्ट ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, दीज आर आल्सो नोन एज पीएमएन। इसको पीएमएन, इन सेल्स को पीएमएन भी कहा जाता है, विच आर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। और ये पीएमएन है, ये 3 प्रकार के हैं। जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स हैं वो 3 प्रकार के हैं, और तीनों प्रकार के सेल्स की भूमिका हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की है। अब प्रश्न उठा, द क्वेश्चन अराइजेस कि ये तीनों प्रकार के पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स क्या करते हैं। वी विल डिस्कस वन बाय वन। उससे पहले जान लें ये तीनों कौन कौन से हैं। पहला है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स और तीसरा है इओसिनोफिल्स। तीनों की चर्चा करते हैं। पहले से शुरू करते हैं द न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स, क्योंकि ग्रेनुलोसाइट्स का पहला प्रकार न्यूट्रोफिल्स, सो वी कॉल इट न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स। अगर संख्या की बात करें, दीज इन ए हेल्दी इंडिविजुअल द नंबर इज इन बिटवीन 4000 to 7000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ये इनकी संख्या है हेल्दी इंडिविजुअल में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये करते क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट इन द फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन शरीर में होता है उसके अगेंस्ट कार्य करते हैं। मोस्ट एबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल्स, क्यों? क्योंकि जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं, जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उस टोटल में से 65 से 70% इनकी संख्या है। यानी कि ल्यूकोसाइट्स का टोटल 65 से 70% भाग ये है, मींस न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स। आगे चलते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है तो ये न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स हैं, उस इंफेक्टेड एरिया पर के पास पहुंचते हैं थ्रू द ब्लड। क्योंकि ब्लड में संचार करते हैं, तो वहां पहुंचकर उसे इन्वेडिंग बैक्टीरिया है, इन्वेडिंग एजेंट है, उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये थी भूमिका न्यूट्रोफिल की। अब बात करते हैं भूमिका दूसरे की, इओसिनोफिल ग्रेनुलोसाइट्स। संख्या होती है एक हेल्दी इंडिविजुअल में 0 से 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर ब्लड। 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 0 से 50 कोशिकाएं पाई जाती हैं। डू नॉट फैगोसाइट, ये फैगोसाइट नहीं करते में, जो फैगोसाइट का था कि दीज डू नॉट च्यू अप द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। तो करते क्या है? द मोर इंपॉर्टेंट इन एलर्जिक रिएक्शन, जो भी एलर्जिक रिएक्शन शरीर में होते हैं, मे बी डस्ट एलर्जी, मे बी different types of viruses that attacks the body, these act against that allergies. And next, the last type of granulocytes are the basophils. The number is very less, संख्या बहुत कम है। 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 0 से 100 कोशिकाएं बेसोफिल ग्रेनुलोसाइट्स की पाई जाती हैं। The number is in between 0 to 100 cells per microliter of blood. अब ये करते क्या है? There is no need to discuss, बहुत विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। The function is same as the previous one, जो पहले के फंक्शन थे वही हैं। These also involved in the allergic reactions, ये भी एलर्जिक रिएक्शन में कार्य करते हैं। They contain histamine and heparin, ये 2 प्रकार के पदार्थ। These have 2 types of substances, हिस्टामाइन और हेपरिन पाया जाता है। दोनों की चर्चा कर लेते हैं। हिस्टामाइन क्या करता है, हेपरिन क्या करता है। हिस्टामाइन का कार्य है जो कि फॉर वाइडनिंग ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल को वाइडन करते हैं जिससे कि ब्लड फ्लो रक्त में बढ़ जाए, जो इंजर्ड टिश्यू है वहां तक अधिक रक्त पहुंचाया जा सके, जिससे कि ऑल्सो मेक्स ब्लड वेसल्स मोर परमिएबल, सो can get into connective tissues more easily, जिससे कि न्यूट्रोफिल एंड जो भी दूसरे एजेंट्स हैं वो अधिक मात्रा में पहुंचाए जा सके। अब बात करते हैं हेपेरिन की। हेपेरिन क्या है? इट्स
coagulant that inhibits blood clotting and promotes the movement of white blood cells in an area, जो कि प्रभावित क्षेत्र में इसमें white blood cells की पहुंचाता है। नेक्स्ट वन इज मोनोसाइट्स की बात करते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम में मोनोसाइट्स की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी संख्या होती है 100 से 1000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। एंगर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, यह भी एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल है। दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, इसका उत्पादन भी बोन मैरो में होता है। दीज मोनोसाइट्स मेक अप बिटवीन 3 to 8% ऑफ द ल्यूकोसाइट्स इन द ब्लड। जो भी ब्लड का टोटल ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का जो टोटल पोर्शन है, उसका 3 से 8% हिस्सा मोनोसाइट्स का है। These circulates in the blood for about 1 to 3 days. जीवन काल इनका समय बहुत कम है, 1 से 3 दिन तक ये रहते हैं ब्लड में। उसके बाद प्रवेश करते हैं टिश्यूज में, उत्तक में प्रवेश कर जाते हैं। तो वहां लाइक न्यूट्रोफिल्स, ग्रेनुलोसाइट्स, जो कि ग्रेनुलोसाइट्स के 3 प्रकार थे, पीछे चर्चा हो चुकी है, उनमें से एक प्रकार था न्यूट्रोफिल। तो उसी तरह से जो न्यूट्रोफिल करता है, these are also responsible for phagocyte of the foreign substances, यह भी नष्ट करता है। this also chew up the invading substances, invading organism। when the monocytes leave the blood barrier, जिस पहले बात कर चुके हैं हम कि यह ब्लड में केवल 1 से 3 दिन तक निवास करता है। तो ब्लड को छोड़ने से पहले these differentiate, ये अलग in their tissue, in the tissues and their size and characteristic changes। चर्चा हो चुकी है पहले भी कि 1 से 3 दिन तक ये ब्लड में रहते हैं। उसके बाद टिश्यूज में, तो टिश्यूज में प्रवेश करते वक्त इनकी विशेषताएं भी बदल जाती हैं, इनका आकार भी बदल जाता है। These cells are named, और इसका विशेषताएं और आकार बदलने का बाद इनको नाम दे दिया गया है मैक्रोफेजेस। These are known as macrophages। अब प्रश्न उठा कि ये what the macrophages do, कि ये करते क्या है। The macrophages are responsible for protecting the tissues from the foreign substances। इनका कार्य भी रक्षा करना है foreign substances से। अब बात करते हैं इस अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं इनेट इम्यूनिटी की। इनेट इम्यूनिटी के अंतिम पड़ाव में, जिसमें कि हम चर्चा कर चुके हैं किस किस की भूमिका अधिक है। बिफोर माइग्रेटिंग द टिश्यूज, ल्यूकोसाइट्स माइग्रेट टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंफेक्शन। ल्यूकोसाइट साइट ऑफ इंफेक्शन, जहां पर इंफेक्शन वहां पहुंचते हैं। दे अंडरगो प्रोसेस, एक प्रक्रिया घटित होती है। प्रक्रिया के बारे में हम जानते हैं, जहां एक से अधिक गतिविधियां हो, दैट इज नोन एज प्रोसेस। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का अर्थ है द सेल्स मूवमेंट टुवर्ड्स सर्टेन केमिकल इन देयर एनवायरनमेंट। तो यह घटित होता है। ग्रेनुलोसाइट्स along with monocytes protects us against bacteria and invading organism। जितने भी बैक्टीरिया हैं या इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि आक्रमणकारी ऑर्गेनिज्म है, इनसे ग्रेनुलोसाइट्स मोनोसाइट्स के साथ मिलकर हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। दिस प्रोसेस, द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटस इंजेक्शन। ओनली सेल्स पार्टिसिपेटिंग इन द फैगोसाइटोसिस आर कॉल्ड एज फैगोसाइट्स। तो कुल मिलाकर बात हुई कि इनको फैगोसाइट्स कहा जाता है। ये हमने बात की अभी तक इनेट इम्यून सिस्टम की। अब एक महत्वपूर्ण इम्यून सिस्टम की एक और रोग प्रतिरोध क्षमता का हिस्सा है, दैट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, जिसको कि हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। हम इसकी चर्चा भी करेंगे कि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम क्या है। दिस इज नोन एज द सेकंड लाइन ऑफ प्रोटेक्शन। ये सेकंड लाइन ऑफ प्रोटेक्शन है, 2 तरह से विकसित होता है, एडेप्टिव एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एडेप्टिव और एक्टिव इम्यूनिटी। इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, लेकिन कैसे? दिस डेवलप्स थ्रू आउट आवर लाइव्स। जीवन पर्यंत इसका विकास, यह विकसित होता रहता है। इट इन्वॉल्व्स लिम्फोसाइट्स, इसमें उपयोगिता लिम्फोसाइट्स की है। एक हेल्दी इंडिविजुअल में 2000 से 5000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। लेकिन दिस डिपेंड्स ऑन एडल्ट आर एक्सपोज टू डिजीज। 2 बातों पर निर्भर है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष में भूतकाल में किसी बीमारी ने आक्रमण किया था, देन एंटीबॉडीज आर डेवलप। और दूसरा है कि वी इम्यूनाइज आवरसेल्व्स, और इम्यूनाइजेशन टेक्स प्लेस अगेंस्ट द डिजीज
थ्रू द वैक्सीनेशन के साथ इसको विकसित किया जाता है। तो ये दो प्रकार से, अगेन आई रिपीट, इफ वी आर एक्सपोज्ड टू ए डिजीज और वी कैन इम्यूनाइज आवरसेल्व्स बाय वैक्सीनेशन। आगे चलते हैं, इसी की बात करते हैं। द मेन सेल्स दैट सीक्रेट्स ए वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स, जो कि एंटीबॉडीज या साइटोकाइनेस कहलाते हैं। दीज आर टू, एक है बी लिम्फोसाइट्स है और दूसरा टी लिम्फोसाइट्स है। ये बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? साधारण भाषा में, यदि मान लीजिए कि जितने भी रोग प्रतिरोध क्षमता में अपनी भूमिका निभाते हैं, उसको यदि एक मिलिट्री का, एक सेना का नाम दे दिया जाए, तो बी लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं बॉडी मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम। यह शरीर का इंटेलिजेंस सिस्टम है, यह आक्रमण नहीं करता है, ये इंफॉर्मेशन जुटाता है, ये सूचनाएं जुटाता है, सूचनाएं जुटाने के बाद इंफॉर्म करता है दूसरे घटकों को और ऑर्गेनाइज करता है डिफेंसेस को कि क्या रणनीति होनी चाहिए। और उसके बाद जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक प्रकार के सैनिक है, दीज आर लाइक ए सोल्जर्स, और वो जैसे ही मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम मींस बी लिम्फोसाइट्स ने सूचना पहुंचाई टी लिम्फोसाइट्स के पास, तो ये एक सोल्जर है, एक सैनिक है जो डिस्ट्रॉय करते हैं इन्वेडर्स को, आक्रमणकारियों को, जो सूचना इंटेलिजेंस सिस्टम ने पहुंचाई उसके आधार पर। अब दोनों की बात करते हैं। अभी तक हमने बात की कि इन दोनों की बात की कि बी लिम्फोसाइट्स दीज आर लाइक ए मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम और टी लिम्फोसाइट्स आर लाइक सोल्जर्स। तो जो टी लिम्फोसाइट्स है कैन आल्सो बी एंगेज्ड इन डायरेक्ट सेल टू सेल वारफेयर, सेल टू सेल ऑन सेल वारफेयर में अपने आप को एंगेज रखते हैं डायरेक्टली। सो द लिम्फोसाइट्स स्टार्ट आउट इन द बोन मैरो वेयर दे रिजाइड, पहले बात हो चुकी है, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, बोन मैरो में उत्पादन हुआ, जैसे बोन मैरो में उत्पादन हुआ वो वहां से बाहर आए, मैच्योर इनटू बी सेल्स, और वो ये टी सेल्स बी सेल्स में परिवर्तित हुए। लिम्फोसाइट्स कैन आल्सो लिव एंड ट्रैवल इन द थाइमस ग्लैंड, ये थाइमस ग्लैंड में पहुंचे, एंड मैच्योर इनटू टी सेल्स, और टी सेल्स में मैच्योर होते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस, ये प्रक्रिया थी जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब एक और बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में, दीज आर नोन एज ग्रेनुलोसाइट्स की भी शॉर्ट लाइफ है, छोटा जीवन है। दीज आर रिलीज्ड फ्रॉम द बोन मैरो, ये भी बोन मैरो से इनका उत्पादन हुआ। सर्कुलेट इन द बॉडी फॉर 4 to 8 आवर्स, हमारे शरीर में, ब्लड में, रक्त में रहते हैं 4 से 8 घंटे। उसके बाद क्या करते हैं, रक्त को छोड़ते हैं, लीव द ब्लड एंड एंटर इन द टिश्यूज, और उत्तकों में पहुंचते हैं। दीज एंटर इन द टिश्यू एंड कैन लिव देयर फॉर 3 to 4 days, और वहां पर 3 से 4 दिन जीवित रहते हैं। इफ द बॉडी इज एक्सपोज्ड टू ए सीरियस इन्फेक्शन, शरीर में किसी प्रकार का सीरियस इन्फेक्शन होता है, दे विल इवन शॉर्टर, ये इनकी आयु सीमा कम हो जाती है क्योंकि एक इन्फेक्शन से लड़ते वक्त ये नष्ट होते हैं। The number in the blood depends on the release of mature granulocytes from the bone marrow, इनकी संख्या कितनी होगी निर्भर करेगा, क्योंकि उत्पादन बोन मैरो से हुआ तो बोन मैरो ने कितना उत्पादन किया उस पर निर्भर करते हैं। ड्यूरिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के दौरान बॉडी नीड्स द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, जब भी इन्फेक्शन होता है तो हमारे शरीर को अधिक ग्रेनुलोसाइट्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्वेडिंग एजेंट्स के साथ लड़ना है, सेल टू सेल वार में इन्वॉल्व होना है। अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज के कुछ और एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जिसकी चर्चा मैं आपके सामने करना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना जरूरी है। देयर आर वेरियस फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन इम्यून सिस्टम एज वेल एज फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स, हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स है उन सब पर एक्सरसाइज का प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो कि आज की दशा से मेल खाता है उसकी बात करते हैं। हम जानते हैं कि इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी सीपी एंड एटीपी एंड सीपी, जो हमें शुरू में एडेनोसाइन फॉस्फेट और क्रिएटिन फॉस्फेट के माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है। उसके बाद द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम बाय द हेल्प ऑफ GLAS। तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक क्रिया है
जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब हम कोई गतिविधि करते हैं, शारीरिक गतिविधि करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, ईच ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरिक एसिड मॉलिक्यूल। तो प्रत्येक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल 2 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है। क्योंकि एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल 2 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल में बदलता है, तो पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और ये कोशिका में प्रवेश करते हैं। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन है। तो ये पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं और ऊर्जा हम सबको चाहिए, हम सब चाहते हैं ऊर्जावान रहना। तो ऊर्जावान रहने के लिए मोर ऑक्सीजन शुड बी सप्लाइड टू पायरिक एसिड, क्योंकि एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल 2 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित होता है, तो पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स अधिक हो जाते हैं। प्रत्येक पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसको मिल जाती है ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। एंड जिस पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन नहीं मिली, दैट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होता है। दैट लीड्स टू फटीग, और हम थकान महसूस करते हैं। So, by the help of physical exercises, by the help of training sessions, we can delay the fatigue for longer duration. हम थकान को देर तक दूर रख सकते हैं। कैसे? More oxygen can be supplied at tissues level, यानी ऊतक स्तर पर अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकती है, और अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो उस दशा में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कम होगा और हम थकान को कम महसूस करेंगे। सो बाय द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस वी कैन डिले द फटीग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। आई हैव प्रेजेंटेड ए फिजियोलॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट। अब बात करते हैं जो मुख्य है, जिसके लिए मुझे निर्देशित किया गया है, एक्सरसाइज एंड इम्यून सिस्टम। एक्सरसाइज और इम्यून सिस्टम के बीच में क्या सह संबंध है, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अब उसकी हम बात करेंगे। दोनों की बात करते हैं। पहले अर्ली कंसेप्ट, जो कॉलेमन ने कोई पुराना आर्टिकल नहीं है। आई हैव मेंशन्ड ऑल द फाइंडिंग्स बाय डिफरेंट रिसर्च स्टडीज। आई हैव कोटेड दिस I have taken this information from an article published by Coleman on May 5th, 2020। जो अर्ली कंसेप्ट बताया गया था, जिसमें कि अर्ली कंसेप्ट क्या था, ये अर्ली कंसेप्ट था 1980 से 1990 के बीच, और ये 20th सेंचुरी के में चेंज हुआ, के लास्ट में चेंज हुआ। ये कंसेप्ट मान्यता क्या थी? एक भ्रम था कि फिजिकल एक्सरसाइज लीड्स टू इन्फेक्शंस, कि हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को कम करते हैं और एक्सरसाइज करने से इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। लेकिन क्यों था ऐसा? दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन द क्लिनिकल स्टडीज। उसके संदर्भ में कोई क्लिनिकल स्टडी नहीं की गई थी, कोई क्लिनिकल अध्ययन नहीं किया गया था। वह आधारित था केवल ऑब्जर्वेशंस पर आधारित, व्यूज पर आधारित। लोगों ने जैसा प्रकट किया था, जैसा बताया था, उस इंफॉर्मेशन, उस सूचना को आधार मानकर ऐसा कहा गया था। लेकिन उसके बाद अवधारणा बदली। अवधारणा क्या थी? जो कि अब जो एक है न्यू कंसेप्ट है, जो कि एक रिसेंट कंसेप्ट है। और रिसेंट कंसेप्ट क्या है कि इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है दोनों रूपों से। नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है। जो अब मेरे जो प्रस्तुतिकरण का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की चर्चा हो रही है कि हम यह ना माने कि हमेशा ही इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दैट लीड्स टू नेगेटिव इफेक्ट ऑल्सो। इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, लेकिन निर्भर करता है एक्सरसाइज ड्यूरेशन पर, कि कितने देर तक हम एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंसिटी पर, कि कितनी गति से, किस गति से हम एक्सरसाइज करते हैं। और रिसेंट कंसेप्ट में यह पाया गया है। I have quoted an example, a finding of a research study। उस अध्ययन में कहा गया है कि एक्सरसाइज करने से हमारे नेचुरल किलर सेल्स बढ़ जाते हैं, और बढ़ते कितने हैं? The evidences of the clinical studies proves that these increases 10 times, 10 गुना वृद्धि होती है। ये तो बहुत एक सार्थक वृद्धि है, बहुत अधिक वृद्धि है। So this, according to the recent concept, this leads to improvement in our immune system, but we should care about the exercise duration and intensity। पर हमें ध्यान रखना होगा एक्सरसाइज की ड्यूरेशन का और एक्सरसाइज की इंटेंसिटी का। अब आगे बात करते हैं
एक्सरसाइज इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं। एक्सरसाइज इम्यूनोलॉजी की हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, I have mentioned in 4 different types, 4 different classes. First one is acute or chronic changes takes place that enhanced immune surveillance with moderate exercise. यदि हम moderate exercise करते हैं तो हमारी जो immune surveillance है उसमें वृद्धि होती है, that is a positive effect that transits immune dysfunction after heavy exertion. लेकिन दूसरी तरफ यदि heavy करते हैं तो नकारात्मक प्रभाव है। ये दूसरे क्लिनिकल इन्फ्लुएंसेस हैं। इफेक्ट ऑन एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, रिड्यूस सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन इन फिजिकल एक्टिव एंड लीन इंडिविजुअल्स, एक्सरसाइज इम्यून लिंकेज टू इंड्यूस्ड क्रॉनिक डिजीज। और जो तीसरा भाग है जिसमें प्रस्तुतिकरण आपके सामने है, न्यूट्रिशनल इंटरेक्शंस है कि दिस इंटरेक्शन बिटवीन न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज टेक्स प्लेस। इट मींस कार्बोहाइड्रेट attenuates post exercise inflammation, और जो कि इम्यूनो साइंस है जिसमें कि एक्सरसाइज mitigates effect of aging on immune system. I have mentioned these on the basis of research conducted by Niemann and Wentz in the year 2019. ये एक बहुत ही संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण था, लेकिन अब इसकी बात करते हैं। Periods of exercise immunology researches. I have divided different researches into different parts on the basis of the timings, क्योंकि अलग अलग काल में, अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की अध्ययन किया गया। एक ट्रेंड था, एक चलन था 1900 से 1979, फ्रॉम 1900 to 1979, जिसमें कि एज पर द फाइंडिंग्स एक्यूट चेंज इन बेसिक इम्यून सेल। तो इम्यून सेल पर जो एक्यूट चेंजेस थे, क्या परिवर्तन होता था, क्या प्रभाव पड़ता था, उस प्रकार के अध्ययन किए गए। लेकिन चलन उसके बाद चेंज हुआ। 1980 से 1989 के बीच में एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस पर वेरियस रिसर्चेज हैज बीन कंडक्टेड की गई। उसके बाद 1990 से 2009 के बीच न्यूट्रिशन एंड एजिंग को भी शामिल किया गया, साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ, कि द studies of the researches were conducted by taking exercise, nutrition as well as aging, their interrelationship. उसके बाद in the year 2000, it means 2010 onwards, the clinical researches are conducted and still various types of clinical researches are going on to find out the impact of exercises on the immune system. अब बात करते हैं एक ओपन विंडो की, ओपन विंडो थ्योरी की, जिसके बारे में हम सबको जानना जरूरी है। द ग्राफ इज इन फ्रंट ऑफ यू, द पिक्चर इज इन फ्रंट ऑफ यू। इन केस ऑफ द, दिस इज आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज, आफ्टर द इंटेंस एक्सरसाइज, इफ वी परफॉर्म इंटेंस एक्सरसाइज, द विंडो, ओपन विंडो अकर्स, एक ओपन विंडो निर्मित होती है 3 से 72 घंटे तक। और दिस इज ए वेरी क्रिटिकल कंडीशन, ये बहुत ही संवेदनशील अवधि है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज के 3 से, यदि इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो अगले 3 से 72 घंटे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि देयर इज रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस इन दिस ओपन विंडो। लेकिन जैसे ही इन ओपन विंडो के बाद दिस स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम, यह हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। तो यह मेरा उद्देश्य था इस ग्राफ को दिखाने का, कि अगेन आई रिपीट, संक्षिप्त में, आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज द नेक्स्ट 3 to 72 hours are very critical. We should be very careful in this open window. Now is, इसी को आगे इस चर्चा को जारी रखते हैं। A decline in immune system cell numbers post exercise does not mean that they have been lost or destroyed. यह मान्यता थी ना कि जैसे ही एक्सरसाइज करते हैं तो इम्यून सेल्स घट जाते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इम्यून सेल्स की मात्रा कम होगी। तो क्या हुआ? मात्रा कम नहीं हुई तो क्या हुआ? तो हुआ क्या कि सेल्स गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड स्पेशली टू द एरियाज ऑफ द बॉडी व्हिच माइट हैव बीन बिकम इन्फेक्टेड। तो एक्सरसाइज करते वक्त जहां पर बॉडी पार्ट इन्फेक्टेड होते हैं, ये जो कि इम्यून सेल्स हैं वहां पर पहुंचते हैं, तो दूसरे भागों में इनकी संख्या कम हो जाती है। तो हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए।
एग्जाम्पल है सामने आपके, उदाहरण है, सम सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लंग्स, कुछ लंग्स में पहुंचते हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, जो कि हमारी ब्रीदिंग रेट होती बढ़ती उस कारणवश, और ड्यू टू और डेथ ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। तो यह मानना नहीं चाहिए हमें कि एक्सरसाइज के बाद इनकी संख्या कम होती है, बस कारण यही है कि दीज आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेसिफिक एरियाज। सो I will discuss. There are two conditions. I have presented two conditions in front of you. आपके सामने दो दशाएं दिखाई गई हैं। एक दशा है मॉडरेट एक्सरसाइजेस की, एक दशा है इंटेंस एक्सरसाइजेस की। मॉडरेट एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इसमें देखिए, मॉडरेट एक्सरसाइज में दिस इनहेंस्ड इम्यून सिस्टम आफ्टर द ईच सेट ऑफ एक्सरसाइज, लेकिन जो इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं उसमें ओपन विंडो टेक्स प्लेस। After the each intense session, open window occurs and we should be careful about that open window. तो दोनों में फर्क देख लीजिए। So our exercise should be of moderate level. If we do intense exercise, so we should be careful about the open window theory. अब आगे बात करते हैं exercise, immunity and COVID-19. I have taken some findings from a research study that was published on March 30, 2020 by Samson R.J. with the title Exercise, Immunity and COVID-19. इस आर्टिकल में क्या कहा गया था, सुझाव दिए गए हैं, क्या कहा गया है, मेंटेन आवर एक्टिविटी लेवल्स विद इन रिकमेंडेड गाइडलाइंस। जो भी गाइडलाइन हैं विद इन द डायरेक्शंस, उन दिशा निर्देशों के अंतर्गत ही हमें एक्टिविटी लेवल को रखना चाहिए। तो अभी तक की चर्चा में था कि मॉडरेट रखें। आगे बात करते हैं, एक्सरसाइज हैव ए पॉजिटिव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो कि एक्सरसाइज है वो पॉजिटिव और डायरेक्ट इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है, सकारात्मक प्रभाव डालती है सेल्स पर और मॉलिक्यूल्स पर जो इम्यून सिस्टम के है, जिसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है कि 10 गुना हम हमारे नेचुरल किलर सेल्स को बढ़ा देते हैं। इस वो तो एक बहुत बड़ा प्रभाव है। It also counter the negative effect of isolation and confinement stress on various aspects of immunity. And although no scientific data, that is the most important part, although no scientific data currently exists regarding the effect of exercise on coronavirus. अब तक हम सब जानते हैं, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है, अब तक किसी भी क्लिनिकल रिसर्च ने ये नहीं कहा है, इस तरह की फाइंडिंग नहीं आई है, इस तरह का निष्कर्ष नहीं बताया है कि कोरोना वायरस पर, इस पर्टिकुलर वायरस पर एक्सरसाइज का क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसलिए यही है, ओनली वी कैन इंप्रूव आवर इम्यून सिस्टम। हम अपनी केवल रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं। डायरेक्टली वायरस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, it's not invented by any researchers. Exercise can protect the host from many other viral infections. लेकिन कोरोना वायरस की चर्चा तो नहीं की गई है, लेकिन जो दूसरे वायरसेस हैं, दूसरे वायरल इंफेक्शंस हैं, इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा, रेनोवायरस, another cause of common cold, और herpes viruses such as Epstein-Barr, this is also known as EBV, or various other viruses. Exercise have a positive effect on these viruses. जो दूसरे वायरसेस हैं उस पर काफी क्लिनिकल रिसर्चेज हुई हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक्सरसाइज का इन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हमें प्रोटेक्ट करता है इन वायरसेस से। लेकिन कोरोना वायरस के बारे में अभी तक कोई इस तरह का अध्ययन नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। अब लास्ट में अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, सजेशंस की बात। ये सजेशंस मेरे नहीं है, these suggestions are not mine, these suggestions are on the basis of researches and I have mentioned, I will mention these suggestions कि हमारी इंटेंसिटी मॉडरेट होनी चाहिए, we should practice और we should exercise with a moderate intensity, और उसके बाद we should prefer aerobic type of exercises। कितना करें, एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया गया है एक रिसर्च स्टडी में, we should exercise for 30 minutes per day, एक मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ एरोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी 30 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए।
और we should do 5 days per week, एक हफ्ते में, एक सप्ताह में 5 दिन करें. दिस इज मेंशन्ड बाय लज्जू एंड अदर्स इन 2020. कोई पुराना आर्टिकल नहीं है, एक रिसर्च आर्टिकल बाय लज्जू इटल हैज बीन पब्लिश्ड इन 2020. तो ये थे कुल मिलाकर. तो हमें इंटेंसिटी पर ध्यान रखना चाहिए. एरोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी करें, लगभग 30 मिनट तक करनी चाहिए और एक सप्ताह में लगभग 5 दिन करें, बीच में रेस्ट भी लें. अब बात करते हैं, ये रेफरेंसेस है आपके सामने. आई हैव मेंशन्ड ऑल इंफॉर्मेशन. जो भी सूचनाएं मैं आपको प्रदान करता हूं, ये ऑल आर बेस्ड ऑन डिफरेंट रिसर्च स्टडीज कंडक्टेड बाय डिफरेंट रिसर्चर्स. जो विभिन्न शोधार्थी और अनुसंधानकर्ताओं ने जो शोध कार्य किया है, उस शोध कार्य पर आधारित सामग्री आपके सामने प्रस्तुत की गई है. मैं अपने इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूं. मैं आप सबसे माफी चाहता हूं कि ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण शुरू में काफी डिले हुआ और उस डिले के कारण इसको थोड़ा सा मुझे फास्ट कवर करना पड़ा, क्योंकि मुझे एक सीमित समय दिया गया था. अगेन आई एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स. मैं आयोजकों को एक बार मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं. बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रयास किया है और I hope this will be very fructiferous for the spectators. जो भी दर्शक हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी सहभागिता कर रहे हैं इस नेशनल वर्कशॉप में, उन सबको लाभ मिलेगा आशा रखता हूं. और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद देता हूं कि बड़े ध्यान से उन्होंने अपना समय सुनने के लिए अपना समय दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया. वंस अगेन थैंक्स वन एंड ऑल. थैंक यू. Thank you, sir. Sorry, due to technical error. In start, we are already late, and can we still take the questions, sir? Sir? Yes, sure. So we can take 2-3 questions, sir. I think we are already late. Hello. Q&A session has started. If anyone have any questions, they can raise their hands or start on question button. Okay, we have question from Anil Kumar Patel. Lonesh, you can ask your question. Okay, we'll go to next question. I think we have a question from Yogendra Singh. Yes, sir, you can ask. Sir, what are antibodies? Q&A queue is cleared. Rajiv sir, now you are audible. Hello. Yes sir, Hello? you are now audible. The question was what are antibodies? हाँ सर, क्वेश्चन सुन गया, मुझे आपने म्यूट कर दिया था, उस वजह से मुझे तो आ रही थी. हाँ सर. कहते हैं एंटीबॉडीज. सर, इसके उत्तर में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम्स. वी डिवाइड इम्यूनिटी टू 2 टाइप्स, इनेट एंड एक्वायर्ड. एंटीबॉडीज जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात है, यदि भूतकाल में इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म ने हम पर आक्रमण किया तो उसका सामना करने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडीज का निर्माण कर लेता है. तो दीज आर नोन एज एंटीबॉडीज. की भविष्य में किसी प्रकार के वायरसेस यदि आक्रमण करते हैं तो वो एंटीबॉडीज हमें उससे बचा लेते हैं. दीज आर एंटीबॉडीज. Okay. Next question is from Dr. Lalit Modi. Sir, you can ask your question, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Sir, good evening. Sir, first of all, I would like to thanks to you for your very excellent presentation as well as the information. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, my question is there any difference regarding the benefit of indoor and outdoor exercise?
Indoor and no clinical evidence shows that there is a difference between the outdoor and indoor, but it's natural. In outdoor exercises, we can find out we may have the fresh air, but inside, in case of indoor exercises, maybe some type of suffocation is there. So we should prefer outdoor activities. It's my personal experience. ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अनुसंधान या शोध कार्य मैंने नहीं देखा है जिस आधार पर ये कहा जा सके कि कोई सार्थक अंतर है इंडोर टाइप ऑफ एक्टिविटीज में और आउटडोर टाइप ऑफ ओनली शायद यही हो सकता है कि ऑल Hello. Yes, ma'am. Can I Please ask a ask. question? Sir, my mother age is 65 years and she's having elephantiasis. One leg is very much swelling. But she's suffering from heart problem. So what are the exercises can you suggest for her, sir? facing एक तो she is facing heart problem. Another problem is Yes, sir. वो एक लेग बहुत सूज को है सर, बहुत जी swelling नहीं, what is the cause behind the swelling? कि उस swelling का कारण क्या है? Elephantia. Okay. Yes, sir. Madam, simple exercise should be preferred since there is a cardiac problem. So aerobic type of Q&A queue is cleared. and she should prefer some yogic exercises and pranayama practices. Q&A session Thank is you, sir. over. Now I will request Sonal ma'am for thank you speech. Sonal ma'am. Yes, please start. Yes, hello. Yes, I'm ma'am. audible? You are audible. Please start. Hello. Okay. Okay, thank you. Good evening to all. Sonal ma'am, you are not audible. Sonal ma'am. Sonal ma'am, you are not audible. Hello, I am audible. Now audible, ma'am. Please continue. From start. Okay. Thank you. Good evening to all. आज के ऑनलाइन करने का जो अवसर मिला है, यह मेरे लिए गर्व की बात है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर राजीव चौधरी सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमारे इनविटेशन का स्वीकार कर और यह वेबिनार के मुख्य वक्ता के रूप में अपनी अनुमति दी। सर, आपने फिजिकल ट्रेनिंग इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन दी, जो आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच सर, राजीव सर, जो हमारे मार्गदर्शक हैं और जिन्होंने हमें यह वेबिनार करने की अनुमति दी। ऐसे हमारे बिल्लीमोरा विभाग केरौनी मंडल के सेक्रेटरी श्री मुकेश भाई मेहता और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री भरत भाई अमीन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। यह वेबिनार के लिए जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, गाइड किया, ऐसे हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल मैम वर्षाबेन राणा का मैं धन्यवाद करती हूँ। IQSC के कोऑर्डिनेटर श्री सोलंकी सर का मैं धन्यवाद करती हूँ। टेक्निकल सपोर्ट के लिए पाठ ठक्कर, हड़पति अंकित और समकित सर का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे कॉलेज के सभी स्टाफ मेंबर का मैं धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा सर, जिनकी वजह से हम प्रोफेसर राजीव चौधरी सर का संपर्क कर पाए, सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिनकी वजह से यह वेबिनार सफल हुआ है, ऐसे देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू ऑल, धन्यवाद। ओवर टू Thank you, madam. Thank you. Namaskar. थैंक यू राजीव सर, धन्यवाद सर। Thank you, madam. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, Rajesh sir. Okay, sir. All participants, we will send you feedback form by tomorrow, and please expect your
certificate in 3 days. In case if you have any queries, you can still call me or you have email address. So if anyone have any questions now. Thank you. Okay, thank you for joining everyone. Thank you once again, sir. Thank you. Thank you. Thank you. We are Thank ending you. the meeting now. Thank you everyone. Thank you. Goodbye.